روزہ صرف رمضان کے کچھ دنوں میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتا ہے۔ روزہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے روزہ کی عبادت انسانیت کی شروعات سے چلی آ رہی ہے، اور یہ ہر دور میں اللہ کے چنے ہوئے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی رہی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ روزہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا، تو ہمیں اسلام کے آخری دور سے نہیں بلکہ انسان کے پہلے دور سے بات شروع کرنی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر بھیجا، اسی وقت انسان کو یہ سکھایا گیا کہ اس کی زندگی صرف کھانے، پینے اور دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کی آگیا ماننے کے لیے ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کچھ خاص دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تھا اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا عمل ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سینکڑوں سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی۔ ایسے ماحول میں حضرت نوح علیہ السلام صبر، شکر اور عبادت کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ روزہ ان کے لیے صرف جسمانی عمل نہیں تھا، بلکہ روحانی طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے امتحانوں سے گزارا۔ انہوں نے اپنے بیٹے تک کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے مہان نبی کے جیون میں روزہ اللہ پر بھروسے اور تقوی کی نشانی تھا۔ روزہ انہیں سکھاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہی اصلی کامیابی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ اگر اللہ کا قریب بننا ہے تو نفس کی خواہشوں کو قابو میں لانا ضروری ہے، اور روزہ اسی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، جہاں روزہ کا ذکر بہت صاف طور پر ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا تو انہیں 40 راتوں تک روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ روزہ کسی مجبوری کا نہیں، بلکہ اللہ سے کلام کرنے کی تیاری کا حصہ تھا۔ بنی اسرائیل پر بھی روزہ الگ الگ طریقوں سے فرض کیا گیا تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے قریب رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تو اسلامی تاریخ میں مثال بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جس میں وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ بوجھ نہیں، بلکہ سنتلن کا عمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے پاس بڑی حکومت تھی، ان کے لیے بھی روزہ ضروری تھا تاکہ دل دنیا کی چکا چوند میں گم نہ ہو جائے۔ روزہ انہیں یاد دلاتا تھا کہ اصلی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی روزہ موجود تھا۔ ان کی امت بھی اللہ کی عبادت کے لیے روزہ رکھتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتایا کہ روزہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کوئی نیا حکم نہیں، بلکہ اللہ کا پرانا قانون ہے۔ اب جب انسانیت اس مقام پر پہنچ چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ مکہ کے دور میں مسلمانوں کو صبر اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اس وقت روزہ پوری طرح فرض نہیں ہوا تھا، لیکن مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ صبر کی ٹریننگ تھا اور آنے والے بڑے حکم کی تیاری بھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اسلام کا سماجک
और कानूनी ढांचा बनने लगा। नमाज फर्ज हो चुकी थी, ज़कात का हुक्म आ चुका था, और अब उम्मत को उस इबादत के लिए तैयार किया जा रहा था जो उन्हें अंदर से मजबूत बना दे। मदीना में मुसलमानों की जिंदगी बदल रही थी। अब वे एक कौम बन चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने रोजा फर्ज करने का इरादा फरमाया, लेकिन ये हुक्म अचानक नहीं आया। पहले दिलों को तैयार किया गया, ईमान को मजबूत किया गया, और फिर धीरे धीरे रोजा फर्ज होने की राह बनाई गई, ताकि उम्मत इसे बोझ नहीं बल्कि रहमत समझे। ताकि उम्मत जब रोजा रखे तो उसे मजबूरी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत समझकर अपनाए। यही वजह है कि रोजा फर्ज होने से पहले मुसलमानों को सब्र, तकलीफ और त्याग की जिंदगी सिखाई गई। मक्का के दौर में मुसलमानों ने भूख, प्यास और जुल्म सहा, जिससे उनके दिल रोजा जैसी इबादत के लिए पहले ही तैयार हो चुके थे। आखिरकार वो मुक़द्दस लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने रोजा फर्ज करने का हुक्म नाजिल किया। ये हुक्म 2 हिजरी शाबान के महीने में उतरा। इसी के साथ ये ऐलान हुआ कि आने वाला रमजान का महीना पूरी उम्मत के लिए रोजा का महीना होगा। ये कोई मामूली ऐलान नहीं था, बल्कि इंसान की जिंदगी को बदल देने वाला हुक्म था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। इस एक आयत में रोजा की वजह भी बता दी गई और उसका मकसद भी। रोजा इसलिए फर्ज नहीं किया गया कि इंसान को तकलीफ दी जाए, बल्कि इसलिए कि इंसान के दिल में अल्लाह का डर और उसकी मोहब्बत पैदा हो। जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो मुसलमानों ने बिना किसी सवाल के इसे कबूल किया। उस दौर में लोग खेती करते थे, सफर करते थे, जंग की तैयारी में रहते थे, फिर भी उन्होंने अल्लाह के हुक्म को अपने सिर आंखों पर रखा। यही ईमान की सच्चाई थी। रोजा फर्ज होने के शुरुआती दौर में कुछ नियम अलग थे। अगर कोई आदमी इफ्तार के बाद सो जाता तो उसके लिए पूरी रात खाना पीना और अपनी पत्नी के पास जाना हराम हो जाता था। यह हुक्म बहुत सख्त था और कुछ सहाबा से इसमें गलती भी हो गई। तब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस हुक्म को आसान कर दिया और साफ कर दिया कि रात भर सहरी तक खाना पीना और रिश्ते जायज हैं। इससे हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम आसान धर्म है, बोझ डालने वाला नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखकर उम्मत को यह सिखाया कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि पूरे जिस्म का होता है। आपने फरमाया कि अगर कोई रोजेदार झूठ बोलना और गलत काम करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसके भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि रोजा अखलाक सुधारने का जरिया है। रोजा इंसान को सब्र सिखाता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन इंसान अल्लाह के लिए दको रोकता है। यही रोक इंसान को गुनाह से भी रोकने की ताकत देती है। रोजा इंसान के अंदर की बुराइयों को कमजोर करता है और अच्छे कामों की ताकत बढ़ाता है। रमजान के महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। यही वजह है कि रोजा और कुरान का गहरा रिश्ता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा करते थे और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमजान में आपके साथ कुरान दोहराते थे। इससे पता चलता है कि रोजा और कुरान एक दूसरे को मजबूत करते हैं। रोजा रखने का सही तरीका यह है कि इंसान सहरी करे, क्योंकि सहरी में बरकत रखी गई है। सहरी भले थोड़ी हो, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहिए। फिर फज्र से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और तमाम नाजायज कामों से खुद को रोकना रोजा है। मगर असली रोजा तब होता है जब ज़बान झूठ से बचे, आंखें गलत देखने से बचे और दिल में किसी के लिए बुराई न हो। रमजान के रोजे सिर्फ गिनती के दिन नहीं है, ये इंसान को पूरी जिंदगी का रास्ता सिखाते हैं। जो इंसान रमजान में खुद को काबू में रख लेता है वो रमजान के बाद भी गुनाह से बच सकता है। यही रोजा की असली कामयाबी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह भी बताया कि जन्नत में एक खास दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है। इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। जब सारे रोजेदार अंदर चले जाएंगे
तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इससे बड़ा रोजा रखने वालों के लिए क्या इनाम हो सकता है? रोजा समाज को भी सुधारता है। अमीर जब भूखा रहता है तो उसे गरीब की हालत समझ में आती है। इसीलिए रमजान में सदका, ज़कात और मदद का जज्बा बढ़ जाता है। रोजा इंसान को खुदगर्जी से निकालकर इंसानियत की तरफ ले जाता है। अगर कोई आदमी बीमार हो या सफर में हो तो अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है कि वो बाद में रोजे पूरे कर ले। इससे ये साफ होता है कि अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है और उन पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। रमजान की आखिरी रातों में लैलतुल कद्र आती है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये वही रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रोजा इंसान को इस रात की कद्र करना सिखाता है और अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगने का मौका देता है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि रोजा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अल्लाह और बंदे के बीच का ऐसा अमल है जिसका बदला खुद अल्लाह देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। इस तरह रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। 2 हिजरी में फर्ज होकर रोजा उम्मत के लिए रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का जरिया बना। जो इंसान ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ रोजा रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसकी जिंदगी बदल जाती है। दीन हमारा इस्लाम है और इस्लाम हमें इंसान बनना सिखाता है। नमाज हमें झुकना सिखाती है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के आगे। कुरान हमें सही और गलत का फर्क समझाता है। रोजा हमें सब्र और खुद पर काबू सिखाता है। दुआ हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। ज़कात दिल को साफ करती है और समाज को मजबूत बनाती है। याद रखो, जब ईमान मजबूत होता है तो जिंदगी का हर रास्ता आसान हो जाता है। अगर दिल ने ये बात मानी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी राय कमेंट में लिखो और ऐसे ही दीनी नसीहतों के लिए चैनल को फॉलो जरूर करो।